क्या लगता है इनको, इन चारों में क्या डिफरेंस होगा? Sir, actually, if we seen about your mathematics student, then mathematics student is just just a ordinary student which is bounded by any problem and analyzing any problem to give बाउंडेड बाय द the प्रॉब्लम। हाँ हाँ। bounded by the problem and analyzing the problem until the solution you have got. And is a mathematician is a term which we can elaborate by the any kind of problem which being researched by any guy, then we can say this. Sir, just I'm not recalling my points. Just mathematics mentor. If we say about mathematics नहीं नहीं, mentor, फर्स्ट then मैथमेटिशियन, फर्स्ट मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन, व्हाट डिड यू टेल अबाउट मैथमेटिशियन? mathematician, sir, we can say that mathematician is no one but we can say that it is analyzing or research any topic on the deep study level, then we can say that it is mathematician or any kind of Okay, researching the topic at deep, right? yes sir. Okay, so mathematics student means who studies the topic just to solve the problem. But Correct. mathematician means who research the topic at the deep, very deep. At the deep level he goes and he research for the topic. That's great. What about the Correct. mathematics mentor? Mathematics mentor is a just we can say that if the student के along with that student के साथ साथ जो उसकी डिसिप्लिन और उसकी थिंकिंग को समझते हुए जो सॉल्यूशन कर जाए, that is called we can say that mathematics mentor. And Again, after again, that again, 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 come again. with मैथमेटिक्स स्टूडेंट आफ्टर दैट मतलब यो डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन मैनर में जो उसकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हुए उसके पैरेलल विद दैट अगर कोई मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर्ड कर रहा है, दैट इज सेड टू बी मैथमेटिक्स मेंटर आई कैन। Okay. And mathematics teacher? Mathematics teachers, just we can say that mathematics after the getting the doubt from the student and solve the problems by the delivering any kind of So what's the exam. difference between mentor and teacher? Mentor is a that person which is always is being from the is being always parallel to the thinking level of student and मतलब वो deep level वो उसकी thinking को समझते हुए जो उसको मैथमेटिक्स का सर आई एम जस्ट नॉट रिकॉर्डिंग माय पॉइंट्स and just we can I am just confused in mathematics mentor and mathematics teacher. Okay. Mathematics mentor is Acha, if I want to keep upside, right? What do you think? Who will be keeping upper hand? Mathematics teacher will be up or mathematics mentor will be up? If I see mentor upper will level, be mentor, you say higher standard is higher level is mentor, yeah, higher level is teacher, mentor is mentors mentor. So why you're saying mentor is a high level? What the things additionally a mentor does with the teacher doesn't do? because sir mentor is that person which is always parallel with the student, parallel with the thinking of student, but mathematics teacher is not a person which is always teacher only get a doubt from the student and give the solution, that is said to be mathematics mentor mathematics teacher, sorry sir. But mathematics mentor is a that person which is always along with the doubt of student and quality and parallel to the quality knowledge with the study point of Okay, any you student. say you said that mathematics teacher only solves the doubt. That's it. He will just solve the doubts and he'll go. But mentor is the person who travels with the student, right? Who Correct. is in the same path. Just Okay, shalom. As per your definition, I agree with this. So you said that now if I want four things are there, right? A student, mathematics, teacher, mentor, right? So who's correct. going to be at top? In all four, who will be on the top? If one, two, three, four we'll give. So who will be at the bottom? Who will be at the top? If we
analyze on the four out of these four, sir, Hmm. then every teacher, we can say that every teacher perhaps already every teacher is a student, if we can say normally. Every teacher is a student. Mean teacher will come after Yes, student, right? yes, sir. One teacher But cannot be there without being a student, right? is right, sir. So if I say number one is a student, you mean to say that number one is a Yes, student, right? yes, Okay, right, out sir. of these four, number one is student. Then next, Correct. number two. Number two is said to be, sir, mathematics teacher. We can say that. Just Okay, second is a teacher. Okay, after that, mathematics mentor. Then after mathematician. mathematics mentor. Then after that, mathematician. What is difference between mathematician and mathematics mentor? Mathematician is that person, we can say, sir, mathematics, because mathematics is infinite. If we analyze entire mathematics, then mathematics is infinite. If any person's mind is somehow attains that infinity, then that mind itself become a bigger infinity. Then mathematician is that person which analyzing entire mathematics. Is it But possible? Tell me that first of all, any no, sir. mathematician has been so far who has analyzed full mathematics? No, sir, not Then possible. it means you But mean to say that there is no mathematician so far happened in this world? correct, sir. Every mathematician, we can say that every mathematician is trying to research So any topic of the what is a mathematics. mathematician? Who is a mathematician? Mathematician is just that person which give the one entire topic with the analyzing mind and research by the research of any kind of operation So in mathematics. mathematician is a mindset or mathematician is a state. Is Mathematician a is a state that mindset, we is can a mindset or it's a state? A state means when I reach at this point, then I'm a mathematician. I'm mathematician. mindset. Mindset means when I am approaching everything with the rationality. I'm seeing Math, everything with the research. I'm seeing everything with the bottom mathematician is a mindset, sir. mindset, right? Now tell me, if I have to explain something, if I have to Explain explain something. something simple, the level of my understanding is that will be my level of explanation. Agree, disagree? Right, correct, sir. I'm not. My explanation, level of my explanation can never rise more than the level of my understanding. Agree? Correct, sir. Disagree? Correct. Yes. If I can understand only those things which are written in the book, means I'll be able to teach only those things which is written in the book. Agree, disagree? Correct. Correct, sir. If I'm able to see the books which are, if I'm able to see the things which are not written in the books, means I'm able to teach the things which are not written in the books. Right? Correct, sir. Agree? Agree, disagree? Correct, sir. So means the thing is that if I want to teach them something more than the books, which I should have researched something more than the books. Agree, disagree? Correct. Correct. If I'm researching something deep down, am I mathematician or not? Yes, sir. Obviously, you can. You are So mathematician. first I will go deep diving or I'll start teaching. What will come first? Deep diving will come first or teaching will come first? Deep diving. Deep diving will come first. So Yes. the process of being deep diving is the process of being mathematician. Agree? Correct, sir. Now tell me which will come first, which will come later. Sir, mathematician. Mathematics is ये ordered sequence order we can arrange Sequence order, this. right? Now first sequence was the student, right? Correct, sir. Now Second is mathematician. Second is mathematician. second is mathematician. And third Next, is mathematics mentor. And fourth is mathematics teacher. third is mentor, and fourth is teacher. Correct, sir. So means you are saying that teacher is above than mentor. Teacher is No, above sir. than, huh. Mathematics teacher, then after mathematics mentor.
ठीक है, mentor, right? Great. So the sequence is, first of all, student. Correct. Second is mathematics, mathematician. Third is mathematics teacher. And fourth is mathematics mentor. Correct? Okay. Great. Correct. If I see the symptoms, what will be the symptom of being at one? If I say he's a very good student, right? So what will be the symptom Correct. of being a good student? Being a good student, he will solve the problem, and he is trying to solve the problem, any The kind of problem. maximum problem a person can solve will be a better student. Correct? Better student. Correct. Right? As much as problem a person can solve, he is a better student. Correct? Correct. 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 He is not a better teacher. He is a better student. Student. Correct? Correct. So ever, if any person comes and he says, I know much maths, I know much maths, right? Means he's saying, I am a good student, right? Correct, sir. He's never saying I'm a good teacher or good mentor. He's saying I'm a good student. Agree, disagree? Correct. Correct, sir. Now, second is mathematician. What is the symptom of being mathematician? If any person is deep down on the topic Great. of the Great, problem of any great, great, mathematics, great. and So, how a good student will be identified? Being a good student or being a good mathematician? What is the objective? That people who are in my classroom, what is the objective of the mentor? Mentor's objective is to make every student a student, math student, or make every student a mathematician. What is the objective of the mentor? mathematician, to make a mathematician from the class. So if the mathematician, if my students are in the classroom, they are mathematician. So what will be the difference in being student? I suppose one class is there, there math students are sitting, and one class is there where mathematicians are sitting. So what will be the difference? The difference is that, sir, the mathematician class will be analyzing the topic and analyzing the practice with deep down in analysis and research, and after that mathematics student is not able to analyze that Great, knowledge. great, great. So every teacher, every mentor is looking for that my class should be full of mathematician, not full of students, right? Mathematician means they are seeing everything from different perspective. One chapter or one book they are not binded by. They are looking themselves. They are looking themselves other than the book. They're finding the things other than book. They're deep diving and they're problem solving skills they have, right? Agree, disagree? Correct. Great. So now after this, the teacher will come, right? Now, who is the teacher? What is the additional quality? Now, teacher has to be mathematician or not? Without being mathematician, can a teacher can become? Can anyone become a teacher? No, sir. No, sir. No. No, sir. Now, what additional quality a teacher will have? Additional quality of teacher will be the any doubts which is coming from the student and solving the doubts properly. We Great, can say great. that that So is means if I see up to the teacher, right? If I see up to teacher, I'm finding a teacher is there who is the brilliant student. correct, sir. Teacher means he's a brilliant student. He can solve any question. But the time he's solving the question, he's not teacher. He's just a student. But now he can see out of the books. He can form his own questions. He can write his own theories. He can deep down the things. He can see beyond the books. And he sees in the books, out the books, everywhere. Then he is mathematician. Now, whatever he knows, he can deliver also. Whatever he knows, he can Delivered also, sir. deliver also. That is a, Mathematics teacher. or you can say mathematics informer. It will be better if you say mathematics informer. Teacher is nothing, teacher is just informer like a dakia. है ना? He is Correct. informer. He is delivering the things in the better way. Right? He is delivering in better way. He whatever he knows, he will deliver. Now suppose if he knows only ABC in mathematics, he'll be able to deliver only ABC. If he know XYZ also, he'll be able to deliver XYZ also. Agree, disagree? Correct, sir. Correct. So far we have discussed when a good student is there and we add the research to it, it will be a bright student. Bright student and student is a difference. Bright student is a mathematician. And if we add the delivering skill, he will be becoming a. Teacher, sir. Now tell me, what
additionally we need to become a mentor? With the parallel knowledge of a student, be if any teacher will give the problem, will give the solution along with the quality knowledge parallel with the knowledge of educational of knowledge of any student parallel with the I'm mindset. not getting you. I'm not getting it. Sir, mathematics mentor, we can say that with the knowledge parallel to the student, parallel knowledge Means, to the student. If means. he correct, sir, we can say that mathematics mentor is a person which is delivering his delivering his solution parallel with the quality education of any student. Means मतलब what उसकी quality? अंडरस्टैंडिंग उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा करके जो मैथमेटिक्स नहीं नहीं, की वो तो टीचर का सोल्यूशन। काम है, वो तो टीचर का काम है। टीचर का काम डिलीवर करना, यही हुआ। टीचर का काम ही यही है, डिलीवर करना। और डिलीवर आप तभी कर ही सकते हैं जब उसके स्टैंडर्ड पे जाएं। अब अगर डाकिए को डिलीवर करना है आपके घर पे चिट्ठी, आप रहते हैं सुल्तानपुर में, वो लखनऊ में जाकर डिलीवर थोड़ी ना कर देगा। डिलीवरी के लिए तो आपको उसके लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। टीचर हु नोज डिलीवरी मीन्स ही नोज टू रीच एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट, वरना वो तो कर ही नहीं सकता, डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी अगर आपके घर पे किसी को करनी है तो उसको आपके घर तक जाना ही पड़ेगा। करेक्ट So सर। mathematics teacher means he knows how to deliver. He is a mathematician, he is a student, and he's a good student, good mathematician, and now he knows how to deliver also. If So what is sir mentor? we can mentor is a that person, sir, which is always together with the preparation, guiding and motivation and instruction, teaching something and doubt clearing at the upper level. We can say that guidance and motivation is also. टीचर अपर लेवल का गाइडेंस नहीं कर पाता है। टीचर कैन नॉट डू, भाई टीचर इज Sir, अ मैथमेटिशियन, राइट? sir, टीचर इज अ मैथमेटिशियन, ही कैन आल्सो अपर लेवल डूइंग अपर लेवल थिंग्स। in mathematics mentor, sir, we have find all three qualities: mathematics student, Oh, mathematician, and teacher is also mathematics. having all three quality. Teacher is having quality of student also, because teacher is becoming when he is a good student, and one teacher can But become he is a good mathematician, and teacher can become when he deliver the things. Now three qualities a teacher has. So what additional quality a mentor has? mentor has, sir, guidance and motivation is added quality of Guidance any and mathematics. motivation. Motivation, we can say that. So understand what is the job of the mentor. Job of the mentor is to remove all the blockage which is hampering a student to become a student. Correct, sir. Mentor is removing all the blockage which is stopping a child to become a student, and child to or a student to become a mathematician. What did I say? Sir, mathematics has a quality to Mentor. blockage. Mentor has a Yeah, quality. mathematics mentor has a quality Hmm. which clearing the blockage of a student to become The blockage of a child, a of a child child to become a student, to become a student and student become a mathematician. mathematician, right? Blockage. Correct. Now there are two kind of people. Let's suppose if you go to gym, right? If you go to gym, first you will start doing gym, or first you will do preparation of gym. Preparation of gym. Correct. If you go to swimming, first you do swimming, or first you do preparation of swimming. Preparation of swimming. If you have to go Lucknow, first you'll go Lucknow, or first you do preparation of going Lucknow. Preparation of So mentor is who makes a child ready to become a student. correct. Correct. Now the thing is which I'm going to ask you. Now tell me, when you're teaching mathematics, right? Teaching mathematics, what generally stops a student understanding the mathematics? List the things. When you're teaching the mathematics, what Correct. generally stops you or stops students understand the mathematics? What things stop students understand the mathematics? Now suppose score is not coming good, right? If score is not coming good, it's a problem or it's a result? Is a problem we can say, sir. Or it's a result? Yes, sir. If result is not coming good, if students are not performing well in the exams, if students are not performing well in the exams, it's a problem or it's a result?
It's a result, sir. It's a result of own student. It's the result of multiple problems. Yes, sir. Now, mathematics, you are a mathematics mentor and or mathematics teacher. You have taught in the classroom and students did not perform, right? Means Correct. you gave, but students could not receive it or could not perform it, right? These only Right, two sir. problems come in the classroom. Correct, sir. Otherwise, whatever mathematics you are giving, if every student is taking that mathematics and every student is performing that mathematics, then everyone will get 100 marks. Correct, sir. Everyone will get 100 marks. There is no problem. But the problem comes in between, right? Means between the mathematics and student, there are some challenges, right? Students are not ready to accept the full mathematics. So, what are the challenges? What do you think? What are the major challenges which do not let students perform well in examination in mathematics? Major If we challenges. talking, if there are two main problems, sir, which Tell me. is not accept. There is a overusing of smartphone in their home, if we can say that. Overusing of over utilizing the smartphone, and after that he not getting a proper focus during the class, if class is running to ठीक the है, any, ठीक है. And then just okay, these these two. two main Okay. problem. Okay, now let's think about this. Okay, first of all, if I'm a mathematics teacher, now two problems are there from two end, right? One is the mathematics and one is being ready to teach them study the mathematics, correct? Now if they are Correct. overusing the smartphone and they're not focusing in the classroom, will they do good in mathematics? No, sir. No. Now, leaving these things behind, one start teaching mathematics. Is a mathematics teacher a mentor? Mathematics teacher, we can say. Great. He's a mathematics teacher. He is actually not looking these two things and he's directly coming on open chapter number 1, exercise 1.1, start teaching. And then he complains to the principal, child तो सुनते ही नहीं है, बच्चे तो करते ही नहीं है, homework तो होता ही नहीं है. He'll keep on blaming, claiming always. Correct? कि I am doing everything. He's actually Dakia. Who is this? Correct. डाकिया, Mathematics है ना? teachers. Yes, डाकिया sir. इज डाकिया, राइट? Correct. वो बुक से उठाया और बच्चों को दे दिया. अब वो कंप्लेन करा, क्या बताऊं, चिट्ठी लेके गए थे, घर बंद था, मैं क्या ही करूं, घर पे 10 बार दरवाजा खटखटाया, मैं क्या ही करूं, दरवाजे पे ताला लगा था, मैं क्या ही करूं. ऐसे ताले लगे रहते हैं क्लास में बच्चों में कि नहीं लगे रहते हैं? ताले लगे रहते ताले हैं लगे हुए हैं बच्चों के दरवाजों पे. और डाकिया क्या करेगा? खोल के देगा कि वापस चला आएगा? सर, वापस चला आ जाएगा सर, और फिर क्या बोलेगा पोस्ट मास्टर को? कि घर में ताले लगे हुए थे, नहीं देख पाए. टीचर ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं क्या बोलते हैं ही सर, करूं, पेरेंट्स से क्या बोलते हैं? मैं क्या ही करूं, ताला लगा था. मैं क्या. तो उनसे कोई पलट के पूछे कि तुम डाकिया हो क्या हो, तो क्या बोलेंगे? बुरा लग जाएगा उनको. हाँ, बोलेंगे कि सर कभी सोचा नहीं, मैं तो डाकिया ही था, क्या ही करूं, चिट्ठी लेके गया था, किसी ने ली नहीं, कनेक्ट. कबूतर था नहीं मेरे पास जो उड़ा देते, चिट्ठी को पकड़ के दे आता जा करके. हाँ, वो करेक्ट टेक्नोलॉजी की सर. चली गई, पहले थी कभी कबूतर वाली, अब तो बची नहीं. तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि अगर आपने मैथ से पहले मैथ्स न पढ़ पाने के कारणों पे काम ना किया तो आप एक बुद्धू से टीचर रह जाएंगे. और ऐसा कोई भी टीचर मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, नहीं नहीं चाहिए. चाहिए. नहीं, मैथमेटिक्स टीचर को हम अपॉइंट करते ही नहीं. क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर को एक्चुअली आज का जो मैथमेटिक्स टीचर है उसका भी सेकंड स्टेप गायब है. सेकंड स्टेप क्या है? गायब. कौन सा है सेकंड स्टेप? यही सर कि मतलब कौन सा था सेकंड? देखो, स्टूडेंट्स. 4 तुमने फ्लो लिखे थे, दूसरा कौन सा था 4 फ्लो में? दूसरा कौन सा था? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा था? दूसरा मैथमेटिक्स टीचर था सर. आहा, पहला स्टूडेंट था, दूसरा. मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन. आज का टीचर बेचारा ना तो अच्छा स्टूडेंट है, हाँ, यस. यस. मैथमेटिशियन तो वो है ही नहीं, और मैथमेटिक्स टीचर बन गया. ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी तो बहुत तारीफ ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे नहीं होंगे, तभी तो ये लोग आए मेरे पास. तो इन्होंने क्या चेक किया? इन्होंने मुश्किल से पहली चीज चेक की होगी. एज ए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन लगा दो, है ना? दिए थे, नहीं दिए थे इन लोगों ने? हाँ, करेक्ट सर, मुझे बिल्कुल. बताओ वो क्या चेक कर रहे थे? ये
स्टूडेंट चेक कर रहे थे कि टीचर चेक कर रहे थे कि मेंटोर चेक कर रहे थे? क्या चेक किया इन लोगों स्टूडेंट चेक किए सर। ने? स्टूडेंट चेक कर रहे थे। बताओ आपको स्टूडेंट का काम करना है कुछ और करना है? क्या करना था? तो इन्होंने सही चेक किया कि गलत चेक किया? चेक सही किया सर सही आफ्टर किया, क्योंकि दैट। उसके बिना काम नहीं चलना। पहली स्टेप तो वही थी, है ना? पहली स्टेप ही वही थी। अगर वो पहली स्टेप पूरी ना होती तो बात ही नहीं बनती, है ना? वो तो पहली स्टेप तो पूरी करनी थी। दूसरी स्टेप थोड़ी थोड़ी चेक कर पाए होंगे कि दूसरी स्टेप एक बार में चेक नहीं की जा सकती, है ना? दूसरी स्टेप, लेकिन जब मैंने पूछा, हमारे जो मैथ्स एक्सपर्ट थे उन्होंने दूसरी स्टेप में भी आपको बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये कर लेगा, इज अ गुड मैन, राइट? ये अलग तरीके से सोच रहा है। उन्होंने आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे सोचने के लिए, दिए थे उन्होंने? करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने दिए होंगे आपको, आपको लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया होगा बार बार, है ना? करेक्ट सर। करेक्ट। तो उन्होंने दूसरे लेवल तक चेक कर लिया, ठीक है? बहुत ज्यादा अगर कोई इंटरव्यू में चेक करेगा तो क्या चेक कर लेगा? चलो इस टॉपिक को पढ़ा के दिखा दो। करेक्ट इसमें सर। क्या चेक हो जाएगा? मैथमेटिक्स टीचर एज अ। तो क्या इन तीन चीजों को चेक करने से क्लास में मैथ्स अच्छी हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं? मेंटोरशिप। ग्रेट। यस। हम चौथी चीज चेक कर रहे हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने तारीफ ही इतनी करी, करें क्या, करने आना पड़ा मुझे। मैं बिजी था आज बहुत, वेद सर मेरे पीछे बहुत पड़ गए। मैं कल ही वेद सर मेरे पीछे पड़े थे कि अमन के बात करिए, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा। मैं कल बहुत बिजी था। आज भी सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए थे वेद सर, सर समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। पता नहीं क्यों इतनी तारीफ आपकी कर रहे हैं ये लोग। ये तो यही लोग जाने, बट कर तो रहे हैं। हाँ, लायक भी होंगे, नेचुरली लायक होंगे तभी कर रहे हैं। एनीवेज, सो अब बात कर लेते हैं एक चीज। गांव से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत खेती वेती के बारे में जानते हैं? करेक्ट, यस सर, खेती। हाँ। तो मुझे ना अपने खेत में भूसा उगाना है। करेक्ट सर। क्या उगाना है? भूसा उगाना। भूसा उगाना है। उग जाएगा? नहीं सर। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीड्स, वीट सीड्स की वो ग्रेट। भूसा उगाया नहीं जा सकता। भूसा इज द बाई प्रोडक्ट। क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है। दैट इज नॉट फर्स्ट थिंग। वो पहली चीज नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी चीज पे, राइट? इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, राइट? अग्री डिसअग्री? एग्री सर। राइट। डिपेंडेंट। अगर भूसा हमको उगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? धान या गेहूं उगाना पड़ेगा, राइट? करेक्ट सर, और बिल्कुल। उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? भूसा। लेकिन भूसा। अगर वो एसी चलवा देना, ये हमें लगता है इधर का फेस गड़बड़ है। हाँ। लेकिन बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे भूसा ही उगाना है, क्या बोले? भूसा ही उगाना। तो मतलब क्या हुआ? उसके दिमाग में क्या भरा है? क्या भरा है उसके दिमाग में? वो खुरापात भी भूसा भरा है। जिसके दिमाग में भूसा भरा होगा वो क्या उगाने की बात करेगा? भूसा उगाने। भूसा। इसी को कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या नहीं है? नहीं। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म हैं। और कभी भी परिणाम पर, अगर किसी परिणाम को तुम बदल लेना चाहोगे तो तुम हार ही मानोगे हमेशा, है ना? कभी भी आप परिणाम को नहीं बदल सकते। बदल किसको सकते हो? बेसिक, बेस चीज। कर। यस करेक्ट, सर। परिणाम को नहीं बदल सकते। जैसे एडिशन अगर ना आता हो तो आप मल्टीप्लिकेशन सिखा नहीं सकते। अगर बिना एडिशन सिखाए मल्टीप्लिकेशन सिखाने चले जाओगे तो आप किसी परिणाम को सिखाने की कोशिश कर दे रहे हो। अग्री डिसअग्री? एग्री सर। हाँ। अगर आपको डिवीजन नहीं आता होगा तो फिर फ्रैक्शन सिखा नहीं नहीं सकते, सकते। क्योंकि फ्रैक्शन परिणाम है डिवीजन का, या फिर डिवीजन न आने का परिणाम फ्रैक्शन की कमी है, ठीक है? करेक्ट सर। तो कहने का मतलब है पहले चीज पहले आएगी, बाद की चीज बाद में आएगी, ठीक है? करेक्ट सर। पहले बीज बोया जाएगा। बीज बिना बोए आप भूसा उगा नहीं सकते। नहीं सर। लेकिन अगर कोई जा करके खेत में लेक्चर देने लग जाए कि भूसा उगाओ, क्या करे? भूसा उगाओ। और मोटिवेशन देने लग जाए भूसा उगाने का, तो उग जाएगा? नहीं सर। नहीं कांट उगेगा ना? पॉसिबल। क्यों नहीं उगेगा? विकास क्योंकि सर, ये पीछे बाई की पूरी प्रोडक्ट चीजें एंड हैं ही नहीं, ठीक है? नहीं है ही नहीं। नहीं। अब मुझे बताओ, नॉट फोकस इन द क्लास ये रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है? हाँ, नॉट फोकस इन द क्लास। ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। ये किसी कारण से आती है या पहली प्रॉब्लम यही है, या किसी कारण से आ रही है ये? ये कारण से आ रही है सर, तो फिर रिजल्ट है क्योंकि कि प्रॉब्लम है? ये रिजल्ट है सर, वी कैन से प्रॉब्लम बताओ। रिजल्ट। अब यहां पर आएगा, इसको कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम एनालिसिस।
एक टर्म सुना होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या टर्म है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना। क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सलूशन। ढूंढ लेना। सही की गलत? सही सर, सही हम्म। सलूशन। ब्रेन सलूशन स्टॉर्मिंग का करेक्ट सर। मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना। सही की गलत? करेक्ट सर, सही। बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैसा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। कैसा है? ब्रेन इनकरेक्ट। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम्स को सर, किसी भी प्रॉब्लम में कितना ब्रेन कितना यूजफुल है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना। यस और नो? सर आई हैव नॉट गेट दिस अरे आप पॉइंट। बताओ, ब्रेन आपको क्या लग स्टॉर्म। रहा है कि क्या लगता है? मैथमेटिक्स ब्रेन स्टॉर्म। का मतलब किसी भी प्रॉब्लम का अच्छे से अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लेना। यस और नो? आपको क्या यस सर। लगता है? यस ना? सोल्यूशन। दैट इज द प्रॉब्लम। यहीं पर हर आदमी प्रॉब्लम में है, और यही अगर वो समझ जाए तो बात खत्म हो जाए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लो। ऐसे समझो कि मोदी जी मुझे फोन करें और मोदी जी बोले, अरे सनी सर कहाँ थे आप, अब जाके मुझे मिले, एक काम करो, तुमको मैं कश्मीर मामलों का मंत्री बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू द मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स, जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब बताओ मैं पहले क्या करूं? जाके प्रॉब्लम सॉल्व करूं और जा या पहले जाकर प्रॉब्लम की रूट को समझूं? रूट्स को समझें सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम के स्टिमुलेटिंग पॉइंट तक पहुंच जाना। क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब? स्टिमुलेटिंग पॉइंट तक पहुंचना किसी भी किसी प्रॉब्लम। भी प्रॉब्लम के स्टिमुलेटिंग पॉइंट तक पहुंच जाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब किसी का सोल्यूशन ढूंढना नहीं होता। मैथमेटिक्स में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सम आता है तो हम उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते हैं हम प्रॉब्लम करेक्ट। की जड़ तक पहुंच रहे होते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये एडिशन की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो पहले से रखा है। सोल्यूशन तो सबको पता है, वो तो फॉर्मूले सबको पता है, किसको नहीं पता? अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स का कमजोर बच्चा और तेज बच्चा, उसमें ये अंतर नहीं है कि उसको फॉर्मूले नहीं पता। फॉर्मूले लगभग लगभग 70% से ऊपर वाला बच्चा ले लेंगे तो सबको पता। अग्री डिसअग्री? एग्री सर। पर क्या पता नहीं है किस प्रॉब्लम को कहाँ, किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है। यूज करना। इसका मतलब करेक्ट। सोल्यूशन तो था, लेकिन वो प्रॉब्लम उस सोल्यूशन से सॉल्व हो रही थी कि नहीं आ रही थी, इसका अंदाजा उसको नहीं था। नहीं था। इसका मतलब उसको रियल प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं था। नहीं था। इसका मतलब वो प्रॉब्लम की तह तक नहीं पहुंचा। नहीं। और ऐसा कोई भी बंदा जो प्रॉब्लम की तह तक नहीं पहुंचता है, वो सारे ऑप्शंस को लगाने की कोशिश करता है। करेक्ट सर। वरना किसी एक ताले की एक ही चाबी होगी, और अगर 100 तालियों के गुच्छे में भी वो चाबी है, तो अगर जिसको पता है वो सीधे वही चाबी खोलेगा, और जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, सारी चाबियों को ट्राई करता रहेगा। करता रहेगा। ठीक है? अब आपने बोला नॉट फोकस इन द क्लास। अब नॉट फोकस इन द क्लास में आप बता रहे हो कि मेंटोर जा करके वहां पर मोटिवेशन देगा। करेक्ट सर। तो क्या भूसा उगा पाएगा नहीं सर, किसी वो से उगा आज तक? नहीं सर। जो चीज कोई ना उगा पाया वो हम उगा पाएंगे? नहीं सर। आपका वो फोकस ट्राई। किसी लेक्चर से क्लास में लग गया था? आप जब क्लास में पढ़ते थे, किसी ने आके लेक्चर दिया हो, मोटिवेशन दिया हो, तो आपका फोकस लग गया था उसके बाद? सर अपकमिंग डेज को अगर फ्यूचर्स को वो इलेबरेट करके किया जाए, जैसे हम आप क्लास में मुझे जब बताओ, 12th आपकी क्लास। क्लास में लोग बैठे हुए थे, आपकी क्लास में लोग बैठे थे और आपका फोकस नहीं लग रहा था, ठीक है? और फोकस, मान लीजिए, चलो हम, आपको बुखार है, बुखार आपको मलेरिया के कारण है, और हम मलेरिया के कारण फीवर आ रहा है, और हम आपको मोटिवेशन दे दें कि देखो अपकमिंग के दिन से बुखार अगर तुम नहीं छोड़ोगे, बुखार अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा अपकमिंग भविष्य बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन मलेरिया का हम कोई इलाज ना कर पाए, तो बुखार कहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। नहीं, हम उसको बताएं कि नहीं देखो आगे फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी, फिर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, फिर तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, फिर तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, बुखार छोड़ दो, मलेरिया की कोई बात ही ना करे। करेक्ट सर। तो मुझे बताओ, नॉट फोकस इन द क्लास ये आप से रहा है, ये सर है एक्चुअली। ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस सर।
नॉट Actually, sir, फोकस इन द क्लास, ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ because से आ sir, रहा है? some rural students, हाँ sir, हाँ, actually some rural students has make up the planning that he is not deserving well due to the money problems, and they are not getting a proper focus in the classroom. Because of that, they are thinking about the money problem and upcoming further एक बात मुझे education. बताओ, व्हाट डू यू थिंक इन दी schools which are located in Connaught Place in Delhi, where Correct, all the correct. affluent class people students are studying, फोकस की प्रॉब्लम कहाँ है? Correct. वहां ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है? वहाँ ज़्यादा है सर। तो फिर उसका तो गांव वाँव से मतलब खत्म हो गया, रियल फैक्टर पे आओ। देखो अमन, आप मैथमेटिक्स टीचर करेक्ट, हो, मैथमेटिक्स टीचर करेक्ट। फॉर्मूले में बात करता है, किसमें बात करता है? फार्मूले पे सर, बिल्कुल। 2+2 मतलब कितना हुआ 2+2? फोर, फोर, सुल्तानपुर में कितना होगा 2+2? फोर ही होगा सर। अच्छा, अमेरिका यूनिवर्स में? पूरा फोर ही होगा सर। अच्छा, सर्दी में? फोर ही होगा सर, गर्मी में? बिल्कुल। तो फॉर्मूले पे कोई कंडीशन अप्लाई? नहीं होती सर। अब बताओ, नॉट फोकस इन द क्लास, वो 1,000 साल पहले भी लागू, 1,000 साल बाद भी लागू, दिल्ली में भी लागू, मोहम्मदी में भी लागू। नॉट फोकस इन द क्लासरूम कहाँ से आ रहा है? रूट कॉज। रूट कॉज इससे इज पहले क्या था नॉट दैट फोकस इन दिस क्लास? हाँ, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग, वी कैन से दैट ओवर थिंकिंग इज अ मेन प्रॉब्लम, एंड ओवर थिंकिंग इज एक एक आल्सो करके, एक नॉट एक अ करके, प्रॉब्लम। एक एक करके। नॉट फोकस इन द क्लासरूम, नॉट फोकस इन द क्लास का एक हो गया, आपने कहा ओवर थिंकिंग, राइट? करेक्ट सर। दूसरा एक तो नहीं हो सकता, और क्या हो सकते हैं? ओवर थिंकिंग सर, एंड they are मतलब due to the utilizing her smart his हाँ, smartphone, there is due to the utilizing their smart, ओके he is also not ओके, नॉट get a ओवर यूजिंग proper ऑफ, sleep ओवर during यूजिंग, the एक night. सेकंड, ओवर यूजिंग ऑफ स्मार्टफोन, राइट? ओके, Correct sir. और और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? But just two things we can say sir, and also अगर not focusing है, that means delivering lecture जो है वो lecture भी नहीं समझ में आ रहा हो किसी अरे नहीं समझ स्टूडेंट में आ रहा को। पहले होगा कि फोकस पहले होगा? नहीं समझ में आ रहा, पहले होगा सर। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा पहले होगा, फोकस नहीं, नहीं समझ में आ रहा है न फोकस से कारण, कि फोकस नहीं हो रहा है न समझने के कारण? इसमें से पहले क्या है? सर दोनों को रिलेट कर को सकते हैं। रिलेट होता ही नहीं, एक पहले होगा एक बाद में होगा, ये तो बात ही गलत हो गई, एक पहले होगा एक बाद में। सर, लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो फोकस नहीं जाएगा। ये फोकस और नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ फोकस रहा। फोकस नहीं है इसलिए नहीं समझ आ रहा, और लेक्चर सही नहीं है इसलिए भी नहीं समझ। एक सर, इसमें जब एक बताओ, इसमें से पहले क्या आएगा? पहले सर, बीइंग अ टीचर आई विल गिव द आंसर इन फोकस नहीं हो रहा है सर। इसलिए लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, राइट? करेक्ट तो सर। लेक्चर वाली तो बात ही हटा देगा, कि हम तो फोकस वाली बात कर रहे हो, तो उसके आगे की कहानी, उसकी क्या ही बात करनी है अभी, उसको तो छोड़ ही दो फिर अभी। ठीक, अब फोकस नहीं हो रहा क्यों? ओवर थिंकिंग, दूसरा ओवर यूजिंग ऑफ फोन, और कोई कारण? बस सर, देयर आर टू आपने मेन कहा अगर ये प्रॉब्लम। दो चीजें क्लास से हट जाएं, बच्चों से, हमने क्या बोला, करेक्ट, मेंटर का काम क्या है? मेंटर का काम है मैथ से पहले की चीजों पे बात करना। करेक्ट सर। अगर इस पे बात नहीं की तो वो क्या बन जाएगा? टीचर बन जाएगा। डाकिया। ज्यादा डाकिया, अच्छा होगा यस सर। डाकिया कह देना, है ना? करेक्ट सर, करेक्ट डाकियों, सर। डाकियों का कोई काम नहीं होता। होगा डाक खाने में? स्कूल में तो नहीं है, नहीं, है ना? हाँ, हाँ, ग्रेट। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताओ, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है कि रिजल्ट है? ओवर थिंकिंग एक रिजल्ट वी कैन से सर। रिजल्ट है। आप बताओ, ओवर थिंकिंग के नीचे आ जाओ, क्यों क्यों ओवर थिंकिंग आती है? क्योंकि ओवर थिंकिंग पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। भूसा है ये कि नहीं है? भूसा है सर, तो काम कर सकते हैं इस पे? कर सकते हैं। भूसे पे नहीं काम कौन सर, कर सकता है काम जिसके दिमाग में क्या है? नहीं, 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 भूसा है नहीं, तो नहीं काम किया नहीं जा कर सकता। सकते, तो किस पे काम करेंगे? अब देखते हैं ओवर थिंकिंग क्यों आ रही है, बताओ। ओवर थिंकिंग सर, मेनी सोर्सेस हैं अब ओवर बताओ थिंकिंग बताओ, के। क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे? अब अच्छा, ओवर सोर्स थिंकिंग नहीं भी पता, क्या, सोर्स नहीं पता तो हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं? नहीं ठीक कर सकते सर। तो मेंटर पहले मैथ्स की बात करेगा कि पहले ओवर थिंकिंग के सोर्स की? ओवर थिंकिंग के सोर्स की चलो सर। फिर बताओ।
सर हम ये सोर्स हो सकते हैं कि किसी की इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक और इंडिविजुअल बच्चा पकड़ लो, एक हाइपोथेटिकल बच्चा पकड़ लो, एक हाइपोथेटिकल बच्चा, जैसे सर एक एक जनरल बच्चा पकड़ लो, लखनऊ जनरल बच्चे की लखनऊ लगभग एक अगर जनरल बच्चा पकड़ लखनऊ लोगे तो लगभग लगभग सेम चीजें ही होती हैं एक जनरल बच्चे की। ओके सर, हम्म। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी पकड़ते हैं स्टूडेंट। सर, एक हम्म। ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की अगर बात किया जाए तो उसके तीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन मैथमेटिकल इंडेक्शंस, वी कैन से दैट कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट है उसके प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स पी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, वी कैन से ए इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिज हाउस, एंड मतलब ये इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिज हाउस, मतलब कि जो घर में उनके पेरेंट्स कहीं मतलब उलझे हुए हैं किसी भी क्राइम या किसी भी चलो हाउस प्रॉब्लम हो अननेसेसरी गई, चीज, ठीक है, और बताओ। हाउस प्रॉब्लम्स। सेकेंड थिंग इज दैट सर कि कोई भी स्टूडेंट मतलब अपने आप में ही सेल्फ कंफ्यूज, और सेल्फ कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है उसको कि वो अपना क्राइटेरिया देख ही नहीं पा रहा है, मतलब जैसे स्मार्टफोन का यूजिंग स्मार्टफोन। एंड थर्ड इज सर कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, सी इज अ प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन थिंकिंग, या कह सकते हैं सर किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर जैसे ही अच्छा एक इज बात बताओ मुझको, मैथ्स का कोई टॉपिक बताओ जो आप पढ़ाते हो। मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन जैसे हो गए पहला अगर टॉपिक। रिलेशन फंक्शन के बारे में पूछेंगे तो इतना ही सोच के बताओगे कि कट 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 बताते चले जाओगे। बताते हुए चले जाएंगे सर। ग्रेट, कितने दिन से पढ़ा रहे हो। सर प्रीवियस 4 इयर्स। 4 ईयर में। तो 4 साल में अगर ओवर थिंकिंग के बारे में सोचा होता, अगर नॉट फोकस इन द क्लास के बारे में सोचा होता 4 साल में, तो मुझे बताओ ऐसे बता रहे होते कि कट 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 बताते चले जा रहे होते। बताते हुए चले जा रहे तो होते इसका मतलब सर। हम क्या मान रहे हैं अभी अभी तक, कभी तक की बातों से क्या माने हम। मैथमेटिक्स ऐसा डाकिया ही सर। सही है सर। अभी तक की बातों से हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप डाकिया ही हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, प्लीज बुरा मत करेक्ट मानिएगा दोस्तों। बिल्कुल। मेरा काम है, देखो मेरा काम है आईने जैसा, आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको नाक में काला दिखता है, ठीक है। अब नाक में काला दिखा, दो काम कर सकते हैं। एक, हम अपने काला देख लें कहां से आ रहा है, सही कर लें, और दूसरा शीशे को तोड़ दें और शीशे से कहें तुम बहुत बदतमीज हो, तुमने काला दिखा दिया, ठीक है। करेक्ट। तो बहुत से लोग मेरे सामने इंटरव्यू में आते हैं, बाद में जाके मुझे बहुत गालियां देते हैं, है ना, उल्टे सीधे कमेंट भी डालते हैं लोग, है ना, मेरे ही यूट्यूब चैनल वीडियोस पे जा करके ये बोला कि ऐसा मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं देखा, बताइए इंटरव्यू में कोई ऐसी बातें करता है, ये करता है वो करता है, मुझे डाकिया बोल दिया, ये बोल दिया वो बोल दिया, पता नहीं भाई वो क्या बोलते हैं, वो उनका अपना सोचना है। मेरा काम तो आईना है, आईने को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने नीला है कि पीला है, वो तो दिखाएगा, है ना। यस अभी सर। जो हम यहाँ पर कितनी देर के लिए बैठे हैं वो केवल इसलिए बैठे हैं अमन, इसलिए बैठे हैं। बाकी सारी बातें हमारी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। सैलरी थोड़ी 19 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, वर्किंग आवर एक कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अगर काम करने का मन अच्छा है तो कोई वर्किंग आवर से फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा कम है 1 घंटा ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है बच्चे कम है, माहौल अच्छा है माहौल, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा अगर हम दोनों लोग अलाइन हो गए, अग्री डिसअग्री, अला यस सर। अलाइनमेंट हो गए। और मेरा अलाइनमेंट केवल इस बात पे है कि हम, आप किस चीज के टीचर हैं, मैथमेटिक्स से मैथ्स सर। के। और कौन कौन से टीचर होंगे, एक स्कूल में मान लिया अगर हम बात करें 11th 12th की, तो एक तो मैथ्स का टीचर होगा, और कौन कौन से टीचर होंगे, मैथ्स का होगा और फिजिक्स का होगा फिजिक्स सर। का होगा केमिस्ट्री होगा। और इंग्लिश होगा सर। इंग्लिश और हिंदी होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, कंप्यूटर साइंस होगा और फिजिकल एजुकेशन होगा, अकाउंटेंसी, फिजिकल अकाउंटेंसी होगा। एजुकेशन। लगभग 15 टीचर तो होंगे, है ना। करेक्ट सर। इनमें से बच्चों का टीचर कौन है, ये कोई तो मैथ्स का निकला, कोई फिजिक्स का निकला, कोई केमिस्ट्री का निकला, कोई बायोलॉजी का निकला, इसमें से बच्चों का टीचर कौन निकला। वो सर प्री प्राइमरी में मदर टीचर्स होते हैं हाँ, सर। प्री प्राइमरी में मदर टीचर बच्चों की टीचर है और बाकी सारे टीचर है ना। इसीलिए इसी समस्या के चक्कर में जो मेंटोर होता है वो किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता, वो कभी मैथमेटिक्स का मेंटोर नहीं होता, वो मेंटोर होता है, करेक्ट, वो मेंटोर करेक्ट। होता है। और मेंटोर किसी सब्जेक्ट का नहीं होता, मेंटोर सब्जेक्ट से ही ऊपर होता है, राइट। और करेक्ट। मेंटोर मैथमेटिक्स टीचर प्लस मेंटोर होता है तो वो मेंटोर है। अब मेंटोर का काम है तैयार कर देना, अगर मैंने मैथ्स के लिए तैयार कर दिया तो वो इंग्लिश के लिए तैयार हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट सर। तो किसी बिल्कुल। भी चीज के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैंने उसके ऊपर की ब्लॉकेज हटा दी। अगर मैं जिम में गया, एक जिम में गया मैं,
और जिम में मैंने देखा जो मेरे बैक एक्सरसाइजेस हैं उसके लिए एक अलग मेंटर है, मेरे बाइसेप्स के लिए एक अलग मेंटर है, ठीक है, मेरे हैंड रिस्ट के लिए एक अलग मेंटर है, पैर के लिए एक अलग मेंटर है। अब सब लोग अपनी अपनी चीजों का ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट। कोई इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहा कि मेरी डाइट क्या है, कोई इस बात का करेक्ट। ध्यान ही नहीं दे रहा कि मेरा वार्म अप हुआ कि नहीं हुआ, कोई इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहा कि मेरा मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहा। अब ये वाला आदमी, ये बाइसेप्स वाला इस बात पे ताली बजा दे रहा है कि उसके मैथ्स में 100 नंबर आ गए। मतलब उसकी ताली इस बात पे है कि ये जो बाइसेप्स है ना ये इतना अच्छा हो गया है, पैर इतने पतले, पैर कैसे, इतने पतले, कंधा कैसा 1 किलो का वजन नहीं उठा पा रहा। और भाई साहब ये जो बैक, ये जो ना बैक बैक में जो मसल आ रही, क्या करोगे उस मसल का? हाथ तुम्हारे इतने पतले, पैर तुम्हारे इतने पतले, और ये वो दिखा रहा है, ये बाइसेप्स देख लो, क्या करेंगे इसी बाइसेप्स का? कुछ कर वर्थलेस सकते है हैं? सर। नहीं सर। कोई यूजफुल हो सकती है ये? नहीं। नहीं हो सकती, करेक्ट। कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स टीचर ने ताली इस बात पे बजाई कि मेरे बच्चे के 100 नंबर आ गए, और उन 100 नंबरों का आधार चाहे कुछ भी हो, नैतिकता अनैतिकता किस बात के आधार पे वो 100 नंबर खड़े हैं, इसकी कोई चिंता कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। इसकी जो चिंता कर ले वो मेंटर, जो ये चिंता कर ले कि 100 नंबर तो आ गए लेकिन 100 नंबर का आधार नैतिक है। और कृष्ण कहते हैं अनीति के रास्ते पे चल के ली गई शिक्षा समय पर काम नहीं आती। कब कहा? नहीं है। जब कर्ण ने उनसे पूछा, कर्ण ने पूछा कृष्ण से कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और ये मुझे परशुराम ने बताओ एक श्राप दे दिया, और मैं मेन समय पे भूल गया, मेन समय आया तो मैं भूल गया, ये क्या हुआ? तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा ये परशुराम का कोई श्राप नहीं है, ये हर युग में हर एक छात्र पर रहेगा। जो भी विद्या अनीति के रास्ते पे चल के ली जाती है वो समय पे काम नहीं आती है। नहीं आती। आप बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपकी विद्या को ले जा करके अपने जीवन में उसका यूज कर पा रहे हैं? जीवन में सब बह जा रही कि नहीं बह जा रही? अगर बह ऐसा ही जाती सर। होता तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो एक नीति का परिचायक होता, पढ़ा लिखा आदमी करेक्ट सर। बुद्धि का परिचायक होता, पढ़ा लिखा आदमी समाज में सदृढ़ता का परिचायक होता। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो इसका रहा है मतलब है सर। उसने जो 25 साल लिया वो आगे यूज नहीं कर पा नहीं रहा, सर। नहीं कर पा रहा ना। अग्री करते हैं इस बात को? करेक्ट सर। आपने बेसिकली जो सीखा वो आपने अपने स्टूडेंट करियर में नहीं सीखा, आपने टीचिंग करियर में सीखा पिछले 4 साल में। अग्री डिसअग्री? एग्री सर। 4 साल में आपने जितना सीखा उतना 25 सालों में नहीं सीखा आपने। अग्री डिसअग्री? यस सर। एग्री सर। आपके ये 4 साल छोड़ दिए, केवल 1 साल आपके 25 सालों पे भारी था। अग्री डिसअग्री? एग्री सर बिल्कुल। क्यों? इसीलिए। तो कहने का मतलब है एक बार मन बना लीजिए, हमारे साथ काम करने के लिए, चूंकि आप बच्चों के हाथ को नहीं पढ़ा रहे हैं, पैर को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके पेट को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप किसको पढ़ा रहे हैं? माइंड को। माइंड को। माइंड। इसीलिए बीएड किया है। यस सर, बी एड प- आप ये टी पढ़ के कि बिना पढ़े? पढ़ करके सर किया हमें है। बड़ा सीधी सीधी बात पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहे हैं। पढ़ के कि बिना पढ़े? सर वैसे ही प्राइवेट किया हुआ है। अब तो बस बात खत्म हो गई। अगर देखेंगे तो बीएड में क्या होता है, सब्जेक्ट आपको पहले से आ रहा होता है, वहां पर जो मेजर चंक होता है वो किस बात का होता है? साइकोलॉजी का होता है कि नहीं होता? करेक्ट सर सर। ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि करेक्ट। वहां उनको पता है। अगर ब्रेन कैसे काम करता है तुम्हें नहीं पता तो तुम ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर जैसे सकते। मेरे घर में मधुमक्खी का छत्ता लग गया, मेरे घर में मधुमक्खी का छत्ता लग गया, तो मैं मधुमक्खी छुटाने वाले को बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा? बुलाएंगे सर। वो मधुमक्खी को पकड़ के ले जाएगा, राइट। और मधुमक्खी को पकड़ रहा था तब तक सांप निकल आया, मैंने कहा यार मधुमक्खी को तो पकड़ने आया, सांप भी पकड़ लो, तो वो क्या बोलेगा? अभी क्या बोलेगा? सर नहीं होगा सांप उससे। पकड़ना मुझे नहीं आता। नहीं आता। जब बोलेगा सांप पकड़ना नहीं आता तो बोलेगा एक्चुअली सांप कैसे बिहेव करता है मुझे ये नहीं पता। करेक्ट सर। अग्री डिसअग्री? एग्री सर। मधुमक्खी कैसे बिहेव करती है मुझे पता है। अगर मधुमक्खी के पास मैं पीछे से जाऊंगा, मैं अगर धुआं लेके जाऊंगा, मैं अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो मधुमक्खी कुछ नहीं कर पाएगी। मधुमक्खी कैसे मूव करती है मुझे पता है। मतलब जिस चीज के जितने जितने ज्यादा मूव्स आपको पता है आप उस चीज के उतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अग्री डिसअग्री? एग्री सर। तो जो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है उसको मैथ्स के मूव पता है, उसको पता है
अगर ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, तो मैं ऐसे ऐसे मूव्स कर जाऊंगा। लेकिन जो करेक्ट मेंटोर है सर। उसको किसके मूव्स पता है? मोमेंटम ऑफ द स्टूडेंट्स पता है ब्रेन, सर। स्टूडेंट ब्रेन, कि अगर ओवर थिंकिंग आ रही है तो वो कहाँ कहाँ से, ओवरकम कर देगा। कहाँ से आ रही है, और कहाँ पर उसकी सोर्स। रूट कॉज है। और काम रूट कॉज से ही शुरू होगा। हो सकता है ओवर थिंकिंग के पीछे 100 रूट कॉज हों, तो जिस रूट कॉज, जो प्राइमरी रूट कॉज होगा, उस रूट कॉज से काम होगा। प्राइमरी रूट कॉज होगा खेत की गुड़ाई से, निराई से, वहां से काम होगा। वो है क्या, उसको जान लेना ही मैथमेटिक्स मेंटर। समझ गए? करेक्ट सर। अभी आपको कॉल लेनी है कि क्या आपको वाकई उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में आके काम करना है। अगर काम करना है तो आपका मैथ्स का मेंटोर बनना है। और यहां पर वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लेते हैं? बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ब्लेम गेम नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम आई एम रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। नेवर ब्लेम गेम। ब्लेम गेम नाम की चीज हम नहीं करते। ब्लेम गेम का मतलब क्या हुआ कि टीचर बोले बच्चे की गलती, पेरेंट बोले टीचर की गलती, प्रिंसिपल बोले पेरेंट की गलती, पेरेंट बोले समाज की गलती, बच्चा बोले सबकी गलती, फिर मंगल ग्रह सूर्य ग्रह, ये सब कुछ नहीं होगा। किसकी गलती? एक्सक्यूजेज आर टूल्स ऑफ द लूजर्स। मेरी। यस आई सर। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मुझे जिम्मेदारी मिली है इस क्लास की। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। आई नेवर से कि वो मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते को अगर बदल दो तो क्या होगा, मैं बच्चों को अपनी बात सुना नहीं नहीं पाता। पाता। मेरे बच्चे होमवर्क करेक्ट। नहीं करते, इसका मतलब मैं अपने बच्चों से होमवर्क करवा नहीं पा रहा। नहीं पाता। जैसे ही ये कहानी पलट जाएगी, वहां नजर किसके ऊपर आ जाएगी? मेरे ऊपर। और तो मैं अपनी तरफ देखूंगा। और अगर कहानी को मैंने पलट दिया तो फिर कौन सुधरेगा? स्टूडेंट सुधरे। फिर कौन सुधरेगा? मम्मी पापा सुधरे। और फिर तो मम्मी। कहाँ कहानी जाएगी, पता ही है आपको कहाँ जाती है ना? करेक्ट। तो कहने का मतलब है मैं आपके साथ क्यों आया? क्योंकि इन लोगों ने इतनी तारीफ की थी आपकी, इसीलिए आई केम करेक्ट। टुगेदर टू यू। अब वेद सर, वेद सर। सर एक्चुअली मैं हाँ जी। बताऊं हाँ जी अगर। सर। हाँ जी। हाँ बताएं, अमन कुछ बोल रहे थे। सर पिछले 4 4+ ईयर्स हैं और काफ़ी मैनेजमेंट हमने देखे। हमने मतलब आर एस यूनियन वाला, वहाँ भी टीचा सा एक मैडम थी, मतलब वहाँ की मैनेजमेंट। सर मैं पहली बार ये, शायद ये सारी चीज़ें, ये दिन याद रहे ना याद रहे, ये मतलब कि ये सारी चीज़ें हम लैपटॉप में अपना वो कर रहे हैं, ये याद रहे ना याद रहे, लेकिन सर ये डिस्कशन रियली आई हैव रिमेंबर दिस डिस्कशन टू टेक दैट्स ग्रेट। डिस्कशन। सो कोई डिस्कशन किसी काम का नहीं है अगर वो डिस्कशन हमारे एक्शन में नहीं आ ना रहे। आए। ठीक है? एक्शंस में आएंगे सर एक्शंस में बिल्कुल। आ गया, बात खत्म हो गई। तो मेरा काम क्या है देखो, मेरा काम, गुरु मतलब क्या? गुरु का मतलब क्या? अंधकार को दूर कर दे जो गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स उजाला। ज्यादा। जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं सर। फिर से बोलो, किसको कहते हैं गुरु? अंधकार से उजाले की तरफ जो ले जाए वो गुरु। उसको क्या कहते हैं? बुद्धू। क्या कहते हैं बुद्धू। उसको? उसको बुद्धू कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धू गुरु नहीं कहते कहते उसको, क्या कहते हैं उसको? उसको बुद्धू कहते हैं सर। बुद्धू कहते हैं। गुरु वो है जो तुम्हारे अंधेरे को तुमको दिखा दे। और अंधेरे में कोई रह नहीं सकता। अंधेरे में कोई रह नहीं रह सकता नहीं सर। सकता। जैसे मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, ठीक है, और उसमें बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। एक दिन मैंने देखा उस रोड पे कोई था ही नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला। और जो भी वहां से निकल रहा था, नाक पकड़ के बहुत तेज दौड़ दौड़ के निकल रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था। अब मैं आराम से टहल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन मैं गया तो भी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर मुझे कोई नहीं दिखा। तीसरे दिन मैंने देखा यार लोग उधर जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तीसरे दिन भी उधर ही गया क्योंकि मैं तो उधर ही जाता था। मैं गया तो आज मैं जैसे कि मुझे बदबू आ रही थी बहुत तेज है, क्या हुआ, मैं चल ही नहीं पाया। और मैं वापस लौटा और मैं दूसरी तरफ चला गया। मैंने कहा यार तुम लोग इधर जा रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो? कि उधर बदबू आ रही है। मैंने कहा हाँ बदबू तो आज आ रही, लेकिन तुम लोग तो 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हो। उसने कहा 3 दिन से बदबू आ रही है। हमने अच्छा 3 दिन से बदबू आ रही, ओ माई गॉड। इसीलिए मेरे 2 दिन से जुकाम था, मेरे 2 दिन से जुकाम। जुकाम था। तो मैं बदबू में भी चले जा रहा था। तो बदबू थी नहीं कि बदबू मुझे पता नहीं चली। महसूस नहीं हुई सर। जिसको महसूस हो जाएगी वो बदबू में रह पाएगा?
नहीं रह पाएगा। तो बदबू से निकालने का एक ही रास्ता है, बदबू उसको महसूस ना कराने दिया। करा दीजिए। बदबू उसको महसूस करा दीजिए। करा दी। अगर मुझे कोई बदबू महसूस ना कराए और मुझे रोके कि नहीं तुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है, देखो सब उधर जा रहे हैं, तो मुझे कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा क्योंकि सर। मुझे तो बदबू का एहसास ही नहीं है। करेक्ट तो सर। गुरु वो नहीं है जो अपनी टॉर्च में चलाए कि देख इधर चल इधर चल इधर चल, वो बुद्धू है। गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारे अंधकार को दिखा दे, दिखा दे। एक बार केवल दिखा दे, डिफरेंशिएट करा दे आपको। आप खुद ही कल से आप देखोगे जाके क्लास में कि मैं स्टूडेंट हूं, कि मैं मैथमेटिशियन हूं, कि मैं मैथ्स टीचर हूं, कि मैं खुद ही अपना अंधकार दिखेगा आपको। अंधकार दिख गया तो अंधकार में कोई रहे नहीं नहीं। सकता सर। इसी को कृष्ण कहते हैं विषाद की स्थिति। और जिसके पास विषाद होगा उसे कृष्ण मिल जाएंगे, अपने आप मिलेंगे, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कहीं, वो अपने आप मिलेंगे, वो अंदर ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। राइट। सो वेद सर, वेद सर, यस सर। अब एक बार सर से बात कर लीजिएगा, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें सर से हो गई, देख लेना सर तैयार हैं कि नहीं तैयार है। अब अगर सर तैयार हो तो थोड़ा माइंड बना लीजिएगा सर। अमन सर, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए आपको अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, रिफॉर्म आई एम रेडी फॉर दैट। नहीं, मैं कोई बात नहीं समय देता सर। हूँ, मैं समय इसलिए देता हूँ, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि कहने में सरल है, ठीक है, लेकिन जब आप आते हैं और आपको अपने ही बिलीफ को तोड़ना पड़ता है, अपने ही बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ता है, सबसे कठिन काम दुनिया में वही है। आप माउंट एवरेस्ट से कूद सकते हैं, लेकिन जिस चीज को आप सही मानते हैं उस बात को गलत मान लेना बड़ा कठिन बात है, और जिसको गलत मानते हैं उसको सही मान लेना बहुत गलत बात है। माउंट एवरेस्ट से कूदना सरल है, चलती ट्रेन के सर साथ एक्चुअली हो मैं जाना बताऊं, सरल है। सर, जिस थियरी को आप, जिस क्लासिकल थियरी से आपको रिलेट करते हुए इतना अच्छा, मतलब कि गीता के ज्ञान को भी कहीं न कहीं जोड़ रिलेट करके वो किया, ऐसे प्रोफेसर थे हमारी यूनिवर्सिटी में, अवनीश कुमार चतुर्वेदी सर। हम्म। तो उन्हीं के अंडर में हम अपनी रिसर्च के लिए आगे प्लानिंग कर रहे थे। तो आपके जो ये आपके गाइडेंस में अगर चीज़ें रहेंगी तो डेफ़िनेटली सर हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे लिए सैलरी सेकेंडरी रहती है सर, ठीक है, एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है मैं चाहता हूँ, फिर भी हमारी। मैं चाहता हूँ आज रात का समय ले लीजिए, एक दो मेरे सनी गुप्ता के नाम से यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। सनी करेक्ट गुप्ता सर। पेरेंटिंग कोच करके यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि एक आपने वीडियो टेडेक्स वाला सुन ही लिया होगा, यस सर। और दो तीन वीडियो और देख लीजिएगा, देख लीजिएगा आइडियोलॉजी कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है। और फिर वेद सर को कल बताइएगा, और फिर जब हाँ करेंगे आप, तो फिर वो हाँ होगा, वो समझ लो शादी के पहले वाला है, हमारी आपकी शादी होने वाली है। ठीक है। और हमारे पास या तो अमन कोई आ जाता है तो वो 15 दिन में ही चला जाता है, और नहीं तो आने के बाद कोई जाता नहीं। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि यार ये बात तो ठीक बन रही है, तो कोई जाएगा नहीं, और जाएगा तो 15 दिन में भाग जाएगा, कोई देखेगा यहाँ तो मेरी ही मेरे तक टूटे जा रहे हैं, यहाँ तो मैं इतने दिन से मैथमेटिक्स टीचर बन के अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खा बना रहा था, और ये तो कहने लगे तुमने जीरो काम किया है आज तक। तो उसकी ईगो हर्ट हो जाता है। आई नो कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, और वेद सर लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, इसका मतलब आप अच्छे होंगे। वेद सर, आप सर से कॉल करके मुझे 10 बजे कल बता देंगे। अगर 10 बजे आप मुझे बता देंगे ओके होगा, तो फिर हम अमन सर का नंबर दे दीजिएगा, मैं अमन सर से फोन पे बात कर दूंगा। ठीक है अमन? ओके। श्योर श्योर ओके, थैंक यू श्योर सर, श्योर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच ओके, थैंक थैंक यू यू श्योर सो सर। मच, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो गुड मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।